व्यूअर्स वेलकम बैक। अभी की न्यूज़ है, रशिया स्पेसक्राफ्ट क्रैशेस इनटू मून। ओए होए, मतलब कंफर्म हो गया कि क्रैश हो गया मून में। पहले तो था ना कि सिग्नल लॉस्ट हो गया है, अब कंफर्म हो गया है। चांसेस मुझे भी यही लग रहे थे, पर होप थी कि नहीं, हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे चंद्रयान 2 के टाइम भी फर्स्ट जो न्यूज़ आई थी वो आया था कि हमारे सिग्नल लॉस्ट हो गया है, और उसके बाद थोड़े घंटों बाद वो न्यूज़ आई थी कि हमारा जो है क्रैश हो गया। वही हुआ है यहाँ पे रशियन स्पेसक्राफ्ट का, लूनर का भी, कि भैया वो क्रैश हो गया। तो चलो, बहुत दुख की बात है यार, क्योंकि देखो एक तरफ हमें ये भी था, अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, कि भाई हमें था कि इंडिया का जो है पहले लैंड करे, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट होनी है। पर इतना बुरा भी कोई नहीं चाहता कि वो क्रैश हो जाए। हमें ये तो होता है कि भैया चलो वो ऑर्बिट एक और कर ले या कुछ उस टाइप से हो जाए, पर क्योंकि इतना पैसा किसी कंट्री ने लगाया हो और उसका इतना पैसा जो है क्रैश की वजह से, क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस किया चंद्रयान 2 के टाइम कि कैसे फील होता है, कितना दुख होता है, वैसे किसी भी कंट्री के देखिए, साथ हो तो दुख प्रेस्टीज होगा। ज़्यादा होती है। हाँ पैसा तो बाद में आता है, हाँ हाँ, प्रेस्टीज ज़्यादा और है, रशिया इज्जत को, ज़्यादा है। और रशिया को तो पहले से ये था कि क्योंकि वॉर का टाइम भी चल रहा है, सब था, करेक्ट। तो वर्ल्ड के अंदर अपना दिखाने के लिए कि अभी भी हम पावरफुल हैं, वो उसी वजह से, रीजन से उन्होंने जल्दी भी किया है कि हम राइट पहले करें ताकि हिस्ट्री बने। पर अनफॉर्चुनेट था कि अनसक्सेसफुल का क्रैश राइट। हो गया। मुझे लग रहा था शायद फिर भी कुछ हो जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा या कुछ, पर होप थी। पर ये तो पूरा ही वो हो गया कि बिल्कुल। क्रैश हो गया। तो चलो देखते हैं न्यूज़ एग्जैक्टली क्या डिटेल्स पता चल रही हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Right, I want to bring you some breaking news from Russia now. Well, from space, really. But Russia's Luna 25 spacecraft has apparently crashed into the moon कंफर्म हो गया। after it spun into an uncontrolled orbit. Now, this is according to Russia's space agency. A little उन्होंने ही बता earlier, दिया। it reported an abnormal situation that occurred to the spacecraft when it was preparing a pre-landing orbit. Now, Luna 25 was scheduled to land on the south pole of the moon tomorrow. That was the plan. It seems टुमारो। like that is no longer the plan. Let's go live to the newsroom. BBC's Europe regional editor Paul Moss is there. Hi, Paul. So just talk us through what's happened here. Well, I think, first of all, it's important to understand what this mission was hoping to achieve. As you said, the idea of the Luna 25 mission was to land a spacecraft on the south side, the south pole of the moon, and this would have been the first time it had happened. This was important for two reasons. First of all, scientifically, it was very interesting. What the Russians were hoping to do is detect ice or water itself on the moon, which would be very important if there was ever to be a permanent moon base. However, this project was also all about prestige, and I think this is why this latest Prestige development तो is था। so important. Russia launched this space mission in the midst of sanctions and acknowledged it couldn't get some of the technical parts it would normally need for a space mission. They went ahead anyway, and at the time of the launch, there were critics who said, well, they really thought it only had a 50-50 chance of वही। success. Now, if Russia successfully landed this spacecraft on the south pole of the moon, it would be able to say, look, you sanction us, and still we're able to able to manage do it। this extraordinary technical achievement. Instead, it appears that the lunar spacecraft has crashed. That's what TASS, the Russian news agency, is saying. And so that, I do think, is not going to do anything for Russia's sense of prestige at the moment. We don't know exactly what happened, but it certainly was very close to the moon when things were going right. Only on Saturday, the Russian Space Agency was showing off about the success of the mission. It showed some photographs that the spacecraft had taken of a crater on the moon. It was crowing about how already it had been able to analyze some of the chemistry of the lunar surface. And then a few hours later, we were told that just as they were trying to shift the spacecraft into what's called a pre-landing orbit, there was some kind of communication problem. And the latest we've heard, the announcement from Rosnosov, the Russian Space Agency, they said, to put it rather bluntly, they said, as a result of a collision with the surface of the moon, the spacecraft no longer exists. That's pretty final and fundamental, I guess. But it's not the only country with a kind of rocket on its way to the moon's south pole, is it, Paul?
This is the most extraordinary thing about this mission and indeed the development we've just heard about. At the same time, India is trying to achieve exactly the same feat, landing a spacecraft for the first time on the south pole of the moon. Their Chandrayaan-3 spacecraft actually took off before the Russian one did. After the Russian one did, and was expected to land on Wednesday. Now, there was clearly a race going on, and it now looks like the Indians have far more chance of winning that race. I should say, though, that India's space agency tried this mission before, and their rocket crashed on that occasion, which shows that this isn't an easy mission to achieve. Exactly. But it is also noteworthy that the original space race was the United States versus the Soviet Union. This time it's been Russia versus India. And I cannot overstate how important space is for Russia's sense of prestige. I would argue even more than it was for the United States during the great space race to the moon, the original space race of the 1960s. I happened to be in Moscow when the space agency announced that they were going to allow the Mir spaceship to crash to Earth. And there was a furious demonstration outside the agency building in Moscow. I had a woman screaming in my ear, if we allow our space station to go down, it is the end of Russia. She was speaking, I think, for many in terms of Russia's sense of its abilities, its prestige, the fact that Russia sent the first man into space, Yuri Gagarin, the fact that Russia, people often don't realize this, actually had the first spacecraft to land on the moon in 1959, an unmanned spacecraft. They were desperately hoping to sort of bring back to life that early sense of Russian achievement in space. And so today's news, I think, is a major blow, not just for the Russian Space Agency, but for Russia itself and indeed for President Vladimir Putin. Okay, Paul, thank you so much for that. कंफर्म हो गया कि क्रैश हो गया है. अब तो कोई मतलब होप ही नहीं. राइट, मैं तो कहूँगा बीबीसी को फैक्ट्स नहीं पता. वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो हाँ बिफोर और आफ्टर में उनको पहले बोला बिफोर, फिर गलत करके पहले बिफोर बोला, फिर इमीडिएटली अपने करेक्ट करके उसने सोचा कि नहीं आफ्टर गया था. हमारा आफ्टर नहीं गया था, हमारा पहले गया था. वही बात करें, साउथ पोल में नहीं जा रहे, साउथ पोल के पास ही रीजन में जा रहे हैं, एरिया में ही जा रहे हैं, पर हम उस पास पे जा रहे हैं जहाँ पे फिर भी थोड़ी रोशनी आएगी. और ये कह सकते हैं कि रशिया साउथ पोल में जा रहा होगा, रशिया भी साउथ पोल में नहीं जा रहा, वो भी हमारी तरह ही था, हमारे से 100 किलोमीटर दूरी पे ही जा रहा था. हाँ एग्जैक्टली. और इन्होंने ये जो बताया कि देखो रेस तो थी, और कोई भी कुछ कहे, उनको था, रशिया को तो था कि हम पहले पहुंचे, क्योंकि उनको वर्ल्ड को दिखाना था कि यूक्रेन की वॉर के जो हो रही है उसके साथ भी हम ये कर सकते हैं. और जैसे कह रहे हैं ना कि सैंक्शंस लगे हुए थे, तो उन्हें कई पार्ट्स भी नहीं मिले, उसके बावजूद वो दिखाना चाहते थे कि पार्ट्स सैंक्शन कर रहे हो फिर भी हम कर पाएंगे. डे 1 से बोल रहे थे 50% चांस, वो बहुत शॉकिंग था. 50% चांस नहीं करना चाहिए. क्यों उड़ा रहे थे? क्यों इतना आपने थोड़ा लेट उड़ाते. मैं तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि थोड़ा लेट चले जाता, मगर ठीक ठाक तो चले जाता. बिल्कुल. जब 50 इतनी क्या मतलब आपको जैसे हड़कंप आ गया था कि अभी जाना है, 50% में भेजो. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से ये भी देखना पड़ेगा. प्रेशर होगा मेरे ख्याल से, कंट्री के अंदर प्रेशर है लोगों को वहां पे दिखाने के लिए कि हम अभी भी पावरफुल हैं. वो उस टाइप का कोई प्रेशर था जिसकी वजह से ये जल्दी में किया गया है. और बहुत पास पहुंच गए थे. दुख इस बात का है कि वो बहुत पास पहुंच गए थे. मून के कितने क्लोज थे, बस उन्होंने एक मेरे ख्याल से ऑर्बिट और करना था और लैंड कर लेना. एक दिन का बचा था बस उनका. चंद्रयान 2 जो है इससे भी ज्यादा क्लोज पहुंच गया था. और बहुत सारी न्यूज़ है कि जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, इंडिया ने इतनी स्टडी की है कि इतना सारा डेटा इंडिया के पास है जो और किसी के पास नहीं है क्रैशिंग का. इसकी वजह से चंद्रयान 3 बिल्कुल बिंदास जाएगा. नहीं, और रशिया को उससे एक लर्निंग भी ले लेनी चाहिए थी कि देखो बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि देखो चंद्रयान 2 भी जो है वो भी क्रैश हुआ था, और इस बारी तो साउथ पोल में जाना है, वो तो और भी टफ है. तो इससे यही दिख रहा है कि इट इज इजी काम नहीं है ये. और अगर इंडिया ये कर लेगा तो इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक करेगा. उससे पहले देखा ही हुआ था लोगों ने कि जापान का गिरा था, उसके बाद मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन हुआ था एक और कंट्री का, वो भी गिरा था. तो 2 केसेस देख चुके हैं जो उनके सफल नहीं हुए हैं. तो इसी वजह से तो इंडिया कह रहा है कि भैया हमको रेस नहीं करनी है, हम अपना आराम से जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं. और हमने इसीलिए रशिया को भी ऑल द बेस्ट और उस टाइप से कहा था कि तुमको जितना अपनी स्पीड से जाना है जाओ, जो तुमको पहले करना है करो, हम तो भैया सक्सेस के लिए कर रहे हैं. तो उससे एक लर्निंग मिलती है पूरे वर्ल्ड को कि हबड़ा दबड़ी में मत करो. जब आप बहुत मतलब जैसे हम इंडिया बोल रहा है ना कि भैया हमारा तो ये भी अगर गड़बड़ हो जाए वो भी गड़बड़ हो जाए फिर भी हम लैंड कर सकते हैं. जब आपका
उस टाइप का सेटअप हो तब तभी आप जाओ, भेजो, बिल्कुल। ऐसे नहीं कि जब Ready होके 50-50 पर जाओ। दुख हो रहा है, पर देखो भाई जो होना था वो होना था, पर होप फॉर द बेस्ट, उनको फिर से ट्राई करना चाहिए, गिव अप तो नहीं करना चाहिए। इंडिया ने गिव अप नहीं किया था, वैसे उनका उनको भी ऑलरेडी नहीं करना लूना चाहिए था। 26-27 हाँ रेडी है। रेडी है, तो फिर उनको उनको वो उस पर बहुत फोकस करके मेक श्योर करना चाहिए कि वो अब सक्सेस हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे अब क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है, कोई डिटेल्स और पता चलते हैं कि किस वजह से ये जो है क्रैश हुआ है डिटेल्स में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।